Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, we are going to start the poem section of class first year. And this is the very first poem, The Rain, that is written by W.H. Davies. W.H. Davies was a romantic poet and he was born in 1871 and was died in 1940. And his first poetry was The Soul's Destroyer. And his favorite themes were nature and the hardships of the poor. The rain is also is written in the background of these themes, in which the writer has not only discussed nature but also the hardships of the poor. The rain is very much impressive in the sense that it's very short, but it's very pithy in its meanings. And W.H. Davies is a very easy poet in its approach, and the usage of language is very easy, as we can say that he was a romantic poet. And this poem is only of two stanzas, and these stanzas are going to discuss the nature and the natural scene. But under the lines of this very simple poetry, we find the very deep meanings, in the sense that the poor are always the sufferers. It means that whenever there is even the blessings, the poor are going to get very less in number. And even if there are the sufferings, they have the sufferings for the long time. एंड आई विल बी द बाइलिंगुअल अगेन. इसमें बेटे रेंज जो है ये एक बहुत ही खूबसूरत पोएम है, दैट इज़ ऑल्सो म्यूज़िकल पोइट्री. And for the reading of the poetry, we'll have to consider 2 or 3 points so that we may get the depth of the meaning. First of all, we have to read the poem in a very musical way so that we can understand the meanings of the poetry even by reading only. And next is to understand the words that have been used to symbolize another thing. And second, the things which are going to discuss here by the poet uh, are, you can say, reflection of the society. So let's start the poetry. First of all, we are going to read the poem. I hear leaves drinking rain. I hear rich leaves on top, giving the poor beneath drop after drop. 'Tis a sweet noise to hear these green leaves drinking near. And when the sun comes out, after this rain shall stop, a wondrous light will fill each dark round drop. I hope the sun shines bright. It will be a lovely sight. We have the two stanzas in this poem. The first stanza consists of the 6 lines, and there is the same case with the second stanza. और जब हम ये स्टैंजास के दरमियान में बेटे पोएम पढ़ते हैं तो हमें जहन में रखना है कि समटाइम्स पोएट जो है वो सिर्फ एक ही बात सारी पोएम में कर रहा होता है, और उसके कुछ सेगमेंट्स एक स्टैंजा में, उसका अगला चंक अगले स्टैंजा में, और उसकी अगली बात अगले स्टैंजा में कर रहा होता है. तो इस तरह से वो एक पूरी बात कवर करता है. बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि शायर हर स्टैंजा में एक नई ही बात करता है, शुरू भी उसी स्टैंजा से होती है, ख़त्म भी उसी में हो जाती है. तो द रेंज जो है वो पोइट्री ऐसी है जो कंटिन्यूटी को शो करती है, और इसका जो अभी मेन पॉइंट था पोइट का वो इसके दोनों स्टैंजास में कवर हो रहा है. अब देखिए इसमें लफ्ज़ है आई हियर लीव्स. अब ये देखिए लफ्ज़ जो आई है, ये आई जो है ये शो करता है बेटा सब्जेक्टिविटी. Whenever there is the mentioning of I and we, these are the first persons, and whenever the writer or the poet is going to discuss the first person, it means that he is going to reveal his own ideas and his own personality. So I is the revelation of the poet's own personality. So I hear leaves drinking rain. And here again the poet is using the word here, that is, you can say, auditory imagery. Auditory imagery means कि जो चीज़ हमारी हिस्सियात को
अट्रैक्ट करती है, उसको सेटिस्फाई करती है जो लव्स, और जिस हमारी सेंस को वो सेटिस्फाई करती है, उस सेंस के एतबार से हम उस लव्स को नाम देते हैं। हियर जो है ये हमारे सुनने की हिस्स को सेटिस्फाई करती है या उसको बहुत ज़्यादा वो इनवाइट करती है, तो इट मीन्स हियर जो है ये ऑडिशन से इसका ताल्लुक है। दैट्स वाई हम इस इमेजरी को, इस लफ्ज़ को, इमेजरी यानी शायबा या ख़याल, इसको हम क्या कहते हैं, ये ऑडिटरी इमेजरी है। हमने शायरी जब पढ़नी है, हमने सिर्फ लफ्ज़ी तर्जुमा नहीं देखना बेटा, हमने देखना है कौन से टूल्स ऑफ पोइट्री जो है वो पोइट हैज़ यूज्ड हियर इन दीज लाइंस। तो हमने एक एक करके ये सारे टूल्स को रिवील करना है। इसको हम फिगरेटिव लैंग्वेज भी कहते हैं, इसको हम पोइटिक टैक्टिक्स भी कहते हैं। तो हमने ये देखना है कि शायर ने कौन कौन सा टैक्टिक ऑफ पोइट्री जो है वो यूज़ किया है। यहाँ पे उसने ऑडिटरी इमेजरी का इस्तेमाल किया, आई हियर लीव्स ड्रिंकिंग रेन, कि मैंने दरख्त के पत्तों को बारिश पीते हुए सुना। What is this drinking rain? Can leaves drink the rain? It means if the rain is falling on the leaves, it looks like that leaves are drinking the rain. तो यहाँ पे we can say that poet is using his imaginative faculty to describe the scene of the rain falling on the leaves. फिर यहाँ शायर क्या कहता है कि मैंने सुना दरख्त जो है वो बारिश के कतरे पी रहे थे उसके पत्ते। आई हियर रिच लीव्स ऑन टॉप। और फिर क्या पता चला कि दरख्त का जो ऊपर वाला हिस्सा था उसके ऊपर जो है वो पानी के ज़्यादा कतरे पड़े हैं, जिसकी वजह से उसको लफ्ज़ उसने क्या दिया, रिच लीव्स का। रिच इज़ एन एडजेक्टिव, खसूसियत है, ख़ासियत है किसकी, लीव्स की। जो ऊपर वाले लीव्स थे पानी के कतरों की वजह से उसको उसने क्या खसूसियत दे दी, क्या ख़ासियत उनकी हो गई कि वो रिच हैं। आई हियर रिच लीव्स ऑन टॉप, मैंने ऊपर वाली जगह पर बहुत ही ज़्यादा अमीर पत्तों को सुना। अमीर पत्तों को यानी वो वहाँ पे बहुत रिमझिम हो रही थी। गिविंग द पुअर बीनीथ ड्रॉप आफ्टर ड्रॉप, और वो जो बारिश के कतरे थे वो नीचे कोई पुअर। अब यहाँ पे पुअर के बेटे दो मीनिंग्स लिए जा सकते हैं। वन इज़ दैट वन पर्सन हु वाज पुअर वाज सिटिंग अंडर द ट्री, एक तो हम ये ले सकते हैं। दूसरा पुअर का मतलब क्या होगा कि शायद वो दरख्त के पत्ते, वो उस दरख्त के वो पत्ते जो कि ऊपर वाले पत्तों से नीचे थे, और उनको भी वो पुअर का जो है वो एडजेक्टिव दे सकता है। अब यहाँ पे वो क्या कहता है, गिविंग द पुअर बीनीथ ड्रॉप आफ्टर ड्रॉप, यानी जो नीचे बैठा हुआ गरीब था उसको एक एक कतरा करके जो है वो पानी का मिल रहा था। इट मीन्स कि जो गरीब शेल्टर के तौर पर दरख्त को ले रहा था कि यहाँ इसके नीचे खड़ा हो जाऊँ तो महफूज हो जाऊँगा, लेकिन उस गरीब को पहले भी कोई और शेल्टर ना मिला, अब अगर मिला ही मिला ये शेल्टर तो इसमें भी उसको सफरिंग जो है उनका सामना करना पड़ रहा है, यानी उसको मुकम्मल तौर पर शेल्टर नहीं मिल रहा, उसको अभी भी कोल्ड वेदर का सामना करना पड़ रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ द ड्रॉप ऑफ वाटर, और जो कि ऊपर वाले पत्तों से नीचे मुस्तकिल एक एक करके ड्रिपलिंग्स की शक्ल में वो नीचे आ रहे हैं। दूसरा इसका मीनिंग बेटा ये लिया जा सकता है कि ऊपर वाले पत्ते जो हैं वो ज़्यादा प्रिविलेज्ड हैं, और वो अपनी मर्ज़ी से, या ये कह लें कि उनका जो सरप्लस वाटर था वो थोड़ा थोड़ा करके नीचे आ रहा है, जो कि नीचे वाले पत्ते जो सूखे थे उनको उनका वो सरप्लस वाटर थोड़ा थोड़ा मिल रहा है। टिस अ स्वीट नॉइज़ टू हियर दीज ग्रीन लीव्स ड्रिंकिंग नियर। टिस ये बेटे वर्ड जो कि दिस के लिए इस्तेमाल होता है, अ स्वीट नॉइज़। स्वीट जो है अगेन एडजेक्टिव है नॉइज़ का, और नॉइज़ जो है वो शोर का वैसे तो मीनिंग होता है, लेकिन जो नॉइज़ स्वीट हो वो नॉइज़ नहीं कहलाता, वो एक म्यूज़िक बन जाता है। टिस अ स्वीट नॉइज़ टू हियर, यानी एक म्यूज़िक का सा मज़ा जो था वो सुनने को मिल रहा था। दीज ग्रीन लीव्स ड्रिंकिंग नियर, कि जो करीब के ये जो पत्ते थे वो सब्ज़ पत्ते जो कि करीब ही इन चीज़ों को या इन बारिश के कतरों को पी रहे थे, यानी वो लुत्फ़ अंदोज़ हो रहे थे। तो शायर ने बहुत ही खूबसूरती के साथ अपनी इमेजिनेटिव जो उसकी कैपेबिलिटीज़ थी उनको यूज़ किया, और एक बहुत ही आम सा मंज़र जो हम हर बारिश के मौसम में देखते हैं और हमें इतना कोई ख़ास वो ये कह लें कि डेप्थ में महसूस नहीं होता, चूँकि शायर की आँख बहुत ही गहराई में देखती है चीज़ को और उसका दिमाग बहुत दूर तक सोचता है। इसलिए वो क्या करता है, वो इन दरख्त के पत्तों से वो मुआशरे की अक्कासी करता है कि जो प्रिविलेज्ड क्लास होती है वो हमेशा ही प्रिविलेज्ड रहती है, जो डाउन क्लास होती है बीनीथ द ये कह लें पॉवर्टी लाइन होती है, वो हमेशा ही सफ़रर होती है। तो यहाँ पे लफ्ज़ रेन के साथ उसने क्लासिफ़िकेशन ऑफ सोसाइटी जो है वो हमारे सामने
क्लियर की है। एक और बात बेटे सोचने वाली ये है कि जब भी हम शायरी पढ़ते हैं तो हम क्या करते हैं, हम स्टैंज़ास के अंदर इस्तेमाल होने वाला जो म्यूज़िकैलिटी का इफ़ेक्ट है उसको महसूस करते हैं। अब देखिए कि हमने इसका जो फर्स्ट स्टैंज़ा पढ़ा था इसमें देखें, अब ये म्यूज़िकैलिटी कहाँ फ़ील होती है, मोस्टली एंड ऑफ द लाइन पे हम जाके वर्ड्स तलाश करते हैं जिससे हमें एक जो है वो रदीफ़ और काफ़िया का आंसर मिलता है। इस पूरे स्टैंज़ा में नोटिस करें कि जो लास्ट वर्ड है पहली लाइन का दैट इज़ रेन, ठीक है? और सेकंड लाइन में जो लास्ट वर्ड है दैट इज़ टॉप, और थर्ड लाइन में जो लास्ट वर्ड है दैट इज़ बीनीथ। नोटिस करें कि कोई लफ्ज़ किसी दूसरे से एज़ सच मिलता हुआ हमें अभी तक महसूस नहीं हो रहा। लेकिन अब हमने हर लफ्ज़, अब जो भी लाइन एंड हो रही है उस आखिरी वाले लफ्ज़ को हमने उसकी साउंड के एतबार से एक नाम देना है। फॉर एग्ज़ाम्पल लफ्ज़ रेन, हमने एन एक साउंड सुनी, तो अब हम इसको एक नाम देंगे और वो नाम फॉर एग्ज़ाम्पल हमने इसको स्मॉल लेटर ए में दे दिया, ठीक है? अब इससे मिलती-जुलती जो भी साउंड होगी हम उसको भी ए ही बोलेंगे। जैसे ही सेकंड लाइन में हमने लफ्ज़ पढ़ा टॉप, ठीक है? तो जो रेन से बिल्कुल फ़र्क था तो हमने क्या किया, हमने इसको एक और नाम दे दिया, हमने इसको कहा कि ये बी है, साउंड बी। अब उसके बाद हमने अगली लाइन में जब लास्ट वाला वर्ड पढ़ा दैट वाज़ बीनीथ, तो ये एक बिल्कुल ही डिफरेंट साउंड थी और हमने इसको सी का नाम दे दिया। तो इस तरह से हमें अभी पता चला कि लाइन्स के आखिर में जो साउंड्स आ रही हैं अभी तक 3 लाइनों में कोई भी साउंड दूसरी से नहीं मिल रही। अगली में देखें कि जब हम अगली लाइन पढ़ते हैं ड्रॉप आफ्टर ड्रॉप, तो ये वाला जो ड्रॉप है वो बहुत हद तक हमें टॉप की ही जो है वो साउंड के वज़न पे फ़ील होता है। तो हम इस साउंड को हम क्या फिर नाम देंगे, हम इसको टॉप के वज़न पर बी का नाम देंगे, ठीक है? इसी तरह से इट इज़ अ स्वीट नॉइज़ टू हियर, ठीक है? ये बिल्कुल ही एक डिफरेंट साउंड है और जब ये बिल्कुल डिफरेंट साउंड हो गई जो कि ऊपर के किसी भी साउंड से नहीं मिल रही, तो इसको हम फिर कौन-सा नाम देंगे? इसको हम कहेंगे कि ये शायद ये डी साउंड है, ठीक है? लेकिन जब हम नीचे वाली सबसे लास्ट वाली लाइन पढ़ते हैं दीज़ ग्रीन लीव्स ड्रिंकिंग नियर, तो नोटिस करें ये हियर के वज़न पे है, ठीक है? और इसको भी हम क्या नाम देंगे? इसको भी हम डी का नाम देंगे। तो ये जो अभी हमने ए, बी, सी, बी, डी, डी जो लफ्ज़ लिखे हैं बेसिकली बेटे ये सब क्या हैं? इनको हम कहते हैं राइम स्कीम, RHYME, राइम एंड स्कीम। ये हमने पोइट्री में ज़रूर देखनी होती है। क्या है ये? राइम स्कीम है। अच्छा, उसके बाद फिर अगला स्टैंज़ा हम पढ़ते हैं एंड व्हेन the sun comes out, after this rain shall stop, a wondrous light, a wondrous light will fill each dark round drop. I hope the sun shines bright. It will be a lovely sight. अब देखिए बेटा ये सेकंड स्टैंज़ा शुरू हुआ। अब राइम स्कीम की हम पहले भी बात कर रहे थे पहले स्टैंज़ा में, इसमें पहले राइम स्कीम की हम बात कर लें। इसमें देखिए कि ये जो पहला जो लाइन का एंड है लफ्ज़ के साथ जिससे हो रहा वो है लफ्ज़ आउट। इसकी साउंड को नोटिस करिएगा, आउट। हम इसको उसी ट्रेडिशन से जैसे हमने ऊपर वाले जो स्टैंज़ा को हमने देखा था कि पहली जो साउंड थी हमने उसको ए का नाम दिया था। देयर इज़ द सेम केस विद दिस साउंड, हम भी इसको किसका नाम देंगे? हम ए का नाम देंगे, ठीक है? अकॉर्डिंग टू आवर प्रीवियस ट्रेडिशन। फिर जब हम पढ़ते हैं आफ्टर दिस रेन शैल स्टॉप, ठीक है? और ये आउट से बिल्कुल फ़र्क है, तो इसको हम देखते हैं कि हमने पहले स्टैंज़ा की तरह जब देखा कि साउंड फ़र्क हो रही है ऊपर से दूसरे वाली, तो हम इसको फिर बी का नाम देंगे, ठीक है? अ वंडरस लाइट विल फिल, और ये जो फिल लफ्ज़ है, ये जो साउंड आ रही है, ये बिल्कुल ही ऊपर वाली दोनों साउंड से फ़र्क है। देखिएगा, ये देखिए फिल जो साउंड है, ये बिल्कुल फ़र्क है। अगेन हमने इसको क्या नाम देना है? एक टोटली डिफरेंट नाम जो कि सी होगा, ठीक? इसी तरह से नेक्स्ट जो नाम आ रहा है, वो अगली हमारी लाइन के एंड वाले वर्ड की साउंड के लिए आ रहा है और वो आखिरी साउंड है ड्रॉप। और आप देखिए ये ड्रॉप किस वज़न पे है? ये स्टॉप के वज़न पे है। अगर हम स्टॉप अप आखिरी हमारी साउंड थी, इसी तरह से हमने जो ड्रॉप अप आखिरी साउंड है, इस वज़न पे हमने इसको भी बी का नाम दे दिया। क्लियर? अब देखिए लास्ट 2 लाइन्स है, इसमें जो आखिरी वर्ड है दैट इज़ ब्राइट, ठीक है? इसको हमने ऊपर भी देखा था कि हमने जब ऊपर से 4 लाइनों में साउंड्स चेक करी, तो इस जैसी कोई साउंड नहीं थी, इसलिए हमने इसको बिल्कुल नया नाम दे दिया दैट वाज़ डी नेम,
Again, the last line of this stanza that has the word at the end of the line is sight, and this is on the, you can say, exact sound, that has the exact sound as of bright. So bright and sight have the same sounds at the end of the word, so we'll give the same name to that sound too. This is the D sound. Clear? So notice that the first stanza and the second stanza have the same rhyme scheme. We can say that this rhyme scheme is A, B, C, B, D, D. We can write this rhyme scheme in the same manner as A, B, C, B, D, D. We can say the rhyme scheme of these two stanzas is A, B, C, B, D, D. This rhyme scheme gives the music to the poem. So, as far as your explanation of the poetry is concerned, whenever you are going to explain the lines, you must give the rhyme scheme of the lines. And what has been said by the poet in the second stanza, let's have a look on it. एंड व्हेन द सन कम्स आउट, और जब सूरज बाहर निकलता है, सूरज ये कैपिटल लेटर से शो किया गया है वर्ड सन। इसको ज़रा नोटिस करें कि जैसे ही सन का वर्ड इस्तेमाल किया गया है, और दिस इज़ द वेरी ब्यूटीफुल वर्ड सन। सन is you can say source of light. Sun is a source of life too. Sun is a source of energy. Sun is a source of you can say activity, बिकॉज वेन एवर देर इज़ अ सन देर इज़ अ लाइफ। तो यहाँ पे सन जो है एक सिम्बॉलिक वर्ड यूज़ हुआ है कि जब बारिश होती है तो उसके बाद जब सूरज निकलता है तो एक बहुत ही खूबसूरत मंजर होता है। तो यहाँ पे सन जो है एक सिंबल के तौर पर यूज़ किया गया है। वी कैन से देर इज़ अ सन दैट हैज़ बीन यूज्ड एज अ सिंबल हेयर। ठीक है, और व्हाट इज़ दिस सिंबल? दिस इज़ द सिंबल ऑफ सक्सेस, दिस इज़ अ सिंबल ऑफ लाइट, दिस इज़ अ सिंबल ऑफ होप। ठीक है, और कहते हैं व्हेन द सन कम्स आउट, और जब सूरज निकलता है, आफ्टर दिस रेन शैल स्टॉप, जिस वक्त ये बारिश रुक जाएगी, इट मीन्स कि अगर सफरिंग्स हैं भी तो वो सफरिंग्स ख़त्म हो जाएंगी, और उन सफरिंग्स के बाद एक उम्मीद की किरण आएगी, एक उम्मीद की रोशनी दिखाई देगी। अ वंडरस लाइट विल फिल ईच डार्क राउंड ड्रॉप, एक बहुत ही मज़े की रोशनी जो है वो हर अंधेरे और गोल किस्म के जो कतरे हैं उनको फिल कर देगी। अब वो अंधेरा गोल कतरा मुराद अगेन बेटा सफरिंग्स ऑफ लाइफ है, कि वो जो जैसे ही कोई उम्मीद की किरण नज़र आएगी, हर किस्म की मुश्किल ख़त्म होती हुई दिखाई देगी, और उसमें एक उम्मीद जो है वो चमक रही होगी। आई होप द सन शाइन्स ब्राइट, इट विल बी अ लवली साइट। अब यहाँ पे अगेन द पोइट इज़ यूजिंग वर्ड आई, इट मीन्स अगेन ही इज़ बिकमिंग अ सब्जेक्टिव, इट इज़ बिकमिंग अ सब्जेक्टिव पोइट्री। आई होप, शायर कहता है कि मुझे उम्मीद है, द सन शाइन्स ब्राइट, और ये सूरज बहुत तेज़ चमकेगा, बहुत ही मज़े का चमकेगा। इट विल बी अ लवली साइट, और उस वक्त मंज़र बड़ा ही सुहाना होगा। यानी जब लोगों को अपनी उम्मीदें मिल जाएंगी, जब लोगों के दुख दूर हो जाएंगे, जब लोगों के अंदर क्लासिफिकेशन ख़त्म हो जाएगी, अमीर अमीर रहेगा, गरीब गरीब रहेगा, इस किस्म की कंडीशंस ख़त्म हो जाएंगी, भाईचारे का मंज़र होगा, अमीर गरीब को oblige करेगा, गरीब अमीर से नहीं डरेगा। तो इस किस्म की जब कंडीशन होंगी तो उस वक्त एक लवली साइट होगी, एक बहुत ही खूबसूरत दुनिया का मंज़र होगा। तो इस तरह से उसने इस रेन को हमारे साथ जो है वो शेयर किया है, इस पोइट्री को। तो पता क्या चला कि इसके अंदर भी W.H. डेविस ने हमें बेसिकली गरीबों की ही बात बताई है कि किस तरह से गरीब जो हैं वो बेचारे परेशानियां झेलते हैं, लेकिन इससे परेशानियां हमेशा नहीं रहने वाली होती हैं, ये भी पता चलता है शायरी से। और हमें ये भी पता चलता है कि वक्त के साथ साथ कोई ना कोई ऐसी उम्मीद पैदा होती है जिससे ज़िंदगी रहने के काबिल और सुहानी हो जाती है। उम्मीद है आपको सब समझ आया होगा। अल्लाह हाफ़िज़।